Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with exercise 1 of unit 6, verbs is MR of your English grammar book. And I had explained and returned the first 13 fill in the blanks of exercise 1. Now today I'm going to continue with the remaining exercise of unit 6. So all of you please take out your English grammar book and turn to page number 27 of unit 6, verbs is MR. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 27 as I'll be continuing with exercise 1 of unit 6, verbs is MR. Students, in my last video, I had explained and returned the first 13 blanks of exercise 1. First of all, I'm going to revise those 13 fill in the blanks and then I'll write the 14th one. Exercise 1, fill in the blanks with is MR. The first one, the vendors are selling popcorns. Write ARER in the first blank. Then the second one, popcorns are so yummy. Write ARER in the second blank. The third one, I am going to buy popcorns. Write AMM in the third blank. Fourth, today is my birthday. Write is in the fourth blank. Fifth, I am throwing a party. Write AMM in the fifth blank. Sixth, my friends are coming in the evening. Write ARER in the sixth blank. Seventh, they are my parents. Write ARER in the seventh one. Eighth, we are the winners of Western dance competition. Write ARER in the eighth one. Ninth, what is your name? Write is in the ninth one. 10th, are they your team members? Write ARER in the 10th blank, keeping in mind that A of R will be capital since we are beginning the sentence with the helping verb ARER. Then the 11th one, is he satisfied with you? So write is in the 11th blank, again keeping in mind that I of is will be capital since we are starting the sentence. The 12th one, it is dark outside. So write is in the 12th blank, is. Now in the 13th blank, there are 3 blanks in the sentences. The first one, how is the weather? Write is in the first blank. Then the second one, is it cloudy? In the second blank, you need to write I of is capital since we are beginning a new sentence. That's a question. And the third one, no, it is sunny. So write again is in the third blank. Now students, let's revise the use of is, am and are. We need to use the helping verb is in the present tense if your subject is singular noun, he, she, it, this, that. Whereas you will be using am only if your subject is I. And you will be using the helping verb are if your subject is plural noun, you, we, they, these, that. Sorry, these and those. Clear? So, ये आपको याद रखना है. ये याद रहेगा तो कोई mistake नहीं होगी. Now the 14th blank. The 14th blank is my teeth dash strong but my sister's teeth dash weak. So there are 2 blanks in the 14th sentence. Now look at this carefully. Fine. My teeth dash strong
and my sister's teeth dash me. Now in this sentence subject, we need to look at the subject. Subject कौन सा है? My teeth. So teeth मीन्स प्लूरल, एक से ज्यादा दांत, एक को हम टूथ बोलते हैं ना. तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. फाइन. सो माई टीथ आर स्ट्रॉन्ग बट माई सिस्टर्स टीथ. अब सेकेंड ब्लैंक के पहले सब्जेक्ट क्या है? सिस्टर्स टीथ. अगेन सिस्टर्स टीथ विच इंडिकेट्स कि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, है ना. सिस्टर्स टीथ, टीथ मतलब एक नहीं बहुत सारे दांत हैं, है ना, एक से ज्यादा. तो इसमें भी आर ही हम लिखेंगे. सो अब यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे? आर. फॉर एग्जाम्पल, अगर माई ट्रूथ होता डैश स्ट्रॉन्ग. सपोज आपका सेंटेंस टीथ की जगह टूथ होता. सब्जेक्ट क्या होता है? टूथ. तो टूथ क्या होता है? टूथ इज वन टूथ. एक दांत को हम टूथ बोलते हैं और बाकी एक से ज्यादा को टीथ. तो आप यहाँ पे इज लिखते. सो यू नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट टू फिल इन दी ब्लैंक. टीथ है, सो वी आर गोइंग टू राइट आर. और टूथ होता तो हम क्या लिखते बेटा? इज. किस में? प्रेजेंट टेंस में. क्लियर? Okay, now turn the page and the 15th one. The 15th blank is Amjad and I. Amjad and I dash scared of dogs. Fine. Amjad and I dash of dogs. Fine. Now look at the subject. Subject क्या है? आप खाली I को मत देखना कि I है तो मैम ने बोला था I के साथ M लगता है. बट ध्यान से देखो, I अगर अकेला हो तब M लगता है. बट यहाँ से I के पहले Amjad and I. That means we are talking about two persons. So our subject is plural, है ना. Amjad and I है, खाली I होता तो हम यहाँ पे M लगाते. But Amjad and I, we are talking about two persons. So यहाँ पे क्या होगा? R. अगर सिर्फ example I dash scared of dogs, ये सेंटेंस होता बेटा, तब हम यहाँ पे M लगाते, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ I था. और यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट I से पहले अमजद भी है ना. सो अभी ये हमको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. सिर्फ I होता तो हम क्या यूज करते? M. बट यहाँ पे तो I के पहले अमजद भी है. दैट रिफर्स कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. सो आप खाली I को देख के M नहीं भरना, उसके पहले का आपको देखना है कि I अकेला है कि उसके साथ कुछ और भी है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो हमने R क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल. सो अमजद एंड I आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स. क्लियर? नाउ द 16th one. How dash you? This is a question. अब आप सोचोगे इसमें कि सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ तो how है. It as I explained earlier, not necessary कि सब्जेक्ट ब्लैंक के पहले ही हो. यहाँ पे you जो सब्जेक्ट है ब्लैंक के बाद है. And as I had explained, you के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं बेटा? आर यूज करते हैं. जब भी हमारा सब्जेक्ट यू होगा प्रेजेंट टेंस में तो हम आर यूज करेंगे. तो हम कभी भी हाउ इज यू नहीं लिखेंगे या हाउ एम यू नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? हाउ आर यू. बिकॉज वी नीड टू कीप इन माइंड दैट इन प्रेजेंट टेंस इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन है, यू है, दे है, वी है, दीज, दोज है, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में. क्लियर? टेंस पता होना चाहिए. तो यू सब्जेक्ट है,
इसलिए हमने क्या यूज किया बेटा, आर। तो हमारा क्या हो गया, हाउ आर यू। नाउ दी 17th वन, डैश हेमा a great dancer। बेटा आपकी बुक में मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, उस इज को काट के आप ए लिखो। फाइन, आपकी बुक में मिसप्रिंट है, हेमा इज अ ग्रेट डांसर लिखा है, आपको इसको काटना है। ठीक है, हमें इसको काटना है और इसकी जगह क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, हेमा इज ग्रेट डांसर। अब इसको काटो क्योंकि यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर, फाइन, सबने इसको कट किया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, नाउ डैश हेमा अ ग्रेट डांसर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हेमा है ना। हेमा किसका नाम है, हेमा इज द नेम ऑफ वन पर्सन, किसी एक पर्सन का नाम हेमा है। तो हम यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। सिंस वी आर बिगनिंग अ सेंटेंस, सो हमारा इसका आई क्या होगा, कैपिटल होगा। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज हेमा अ ग्रेट डांसर। बेटा इसमें गलती से मिसप्रिंट होके इज यहां दिया है, और ये याद रखना है कि दो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में नहीं आते। तो इसको काट के आप ए कर दो, और हम अपना सेंटेंस किससे बिगिन करेंगे, इससे। So, because we are beginning a sentence with the helping verb is, so I of is will be capital. Clear? I hope everyone has done. Now I'm going to erase these. अब मैं इनको erase करूँ एक बार पर, I'm going to read them once again for you, then I'm going to erase. 14th one. My teeth are strong, but my sister's teeth are weak. Then the 15th one. Amjad and I are scared of dogs. 16. How are you? 17. Is Hema a great dancer? इसमें मिसप्रिंट है, इसको काट के आप ए लगाइए। And keeping in mind that we are beginning our sentence with the helping verb is, so I of is will be capital. Clear? So now I'm going to erase these and write the next one. Okay. Now the 18th one. My bus dash late today. My bus dash late today. Now what is the subject in this sentence? The subject is my bus, मेरी बस, एक ही बस है ना। So my bus singular noun, so हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, राइट इज। हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा, इज। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, माई बस इज लेट टुडे। क्लियर, हमारा subject is singular noun, that is my bus, so we will be writing the helping verb is. Clear? Now the 19th one. The school dash closed. Now what is the subject? हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। क्लियर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे सेंटेंस होता दी स्कूल्स,
स्कूल की जगह स्कूल्स होता और ये होता the schools dash closed. सब्जेक्ट अगर स्कूल्स होता तो यहाँ पे एस लगा है, दैट मीन्स की नाउन प्लूरल है, तब हम यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज करते, आर. फाइन. तो स्कूल की जगह स्कूल्स होता तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते, आर. जहां सिंगुलर नाउन है वहां इज प्रेजेंट टेंस में, जहां प्लूरल नाउन है वहां पे आर. क्लियर? Now the last one. Today we dash going to Pratapgarh farm it dash a beautiful place. Okay, now the 20th blank is today we dash going to Pratapgarh farm. Now, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, we. Today we है तो एज ए सेड जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, यू हो, वी हो, दे हो, दीज हो, दोज हो, तो आप क्या यूज करोगे, आर. टुडे वी आर गोइंग टू प्रतापगढ़ फार्म. इट डैश अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट है, अब इट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट है. इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज. इफ योर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, दिस, दैट, तो हम क्या यूज करेंगे, इज. क्लियर? टुडे वी आर गोइंग टू प्रतापगढ़ फार्म. इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. क्लियर? सबको समझ में आया? ओके. आई होप अभी सबको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई कि हमको इज, एम, आर कहाँ यूज करना है. ओके. नाउ आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड. आई विल रिवाइज, देन आई एम गोइंग टू इरेज एंड स्टार्ट विद फन टाइम एक्टिविटी. ओके. नाउ 18. माई बस इज लेट टुडे. यहाँ सब्जेक्ट क्या है, माई बस, सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने क्या यूज किया, इज यूज किया. 19. The school dash closed. The school again singular subject, तो हम क्या यूज करेंगे, is. Then 20. Today we are going to Pratapgarh farm. It is a beautiful place. यहाँ पे फर्स्ट लाइन का सब्जेक्ट क्या है, we है, तो हमने are यूज किया. सेकेंड लाइन का सब्जेक्ट it है, तो हमने is यूज किया. So with this we have finished our exercise 1. I hope everybody has done. Okay. Now I'm going to start with the fun time activity. Now, decode the messages. The fun time activity is decode the message by taking the first letter of each picture. This is our heading. I hope सबको डिकोड करना मतलब पता है. डिकोड करना मतलब कोई कोड लैंग्वेज में लिखना, स्पेशली जैसे आर्मी की कितनी चीजें कोड में लिखी होती है. अब अगर सिंपल लैंग्वेज में है तो कोई भी उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है,
और कोड लैंग्वेज में हो तो इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू रीड दी मैसेज. कितनी बार बहुत सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जिसको कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है. तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है ना. ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट दी पिक्चर्स गिवन ऑन पेज 28. फाइन, पिक्चर्स दी है और हमें पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर लेके हमें मैसेज को डिकोड करना है. क्लियर? हमें पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर लेना है. ओके, नाउ अभी ऑल ऑफ यू लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर ये किसकी है? किसकी पिक्चर है? व्हाट कैन यू सी इन दिस? दिस इज अ नेस्ट. फाइन, तो यू कैन सी बड़े बड़े बॉक्स बने हुए हैं. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 1 2 3 4 and 5. ठीक है. अब सबसे पहले किसकी पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नेस्ट. नेस्ट की पिक्चर है. तो नेस्ट किस लेटर से स्टार्ट होता है? एन. सो वील राइट एन ओवर हियर. हमने क्या लिखा? एन. क्लियर? सो वी हैव रिटन एन. क्यों एन कहां से आया? बिकॉज नेस्ट के लिए एन लेटर से नेस्ट जो है वर्ड वो स्टार्ट होता है. ओके, अब नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर. द सेकंड पिक्चर इज ऑफ एग, है ना. अब एग किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है? सो एग स्टार्ट्स विथ ई. सो वी विल राइट ई ऑफ एग. फर्स्ट हमने क्या लिखा? नेस्ट का एन लिखा, उसके बाद हमने एग का ई लिखा. क्लियर? सो नेस्ट एन, एग्स ई. देन लुक एट दी थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर किसकी है? वैन की, है ना. वैन किस लेटर से स्टार्ट होता है? वी. सो वी विल राइट वी फॉर वैन. क्लियर? एन फॉर नेस्ट, ई फॉर एग, वी फॉर वैन. नाउ लुक एट दी फोर्थ. So, N for nest, E for egg, V for when. Now look at the fourth picture. Fourth picture किसकी है? It's of an elephant. So, elephant किस letter से start होता है? E. So, we have written E. E कहाँ से आया? Elephant की spelling E से start होती है, तो हमने E लिया. Then the last picture is of rose. एक rose flower की है ना. अब रोज फ्लावर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? आर. सो वी हैव रिटन आर. तो पहला पिक्चर से हमने पहला वर्ड तो फ्रेम कर लिया, हमने डिकोड कर दिया, है ना. और हमारा वर्ड, ये सारे पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर लेके वर्ड क्या बना? नेवर. क्लियर? लेट्स रिपीट. कहां से आया है नेवर? एन नेस्ट की पिक्चर से आया, ई एग की पिक्चर से आया, वी वैन की पिक्चर से आया, ई एलिफेंट की पिक्चर से आया और आर रोज की पिक्चर से. ये जितने भी पिक्चर्स दिए हैं इनका जो हमने फर्स्ट लेटर लेके हमारा फर्स्ट वर्ड लिख लिया. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वर्ड. अब देखते हैं सेकेंड वर्ड हमारा क्या है. आई होप आप सब लोग कर रहे होंगे अपने से. ओके, फर्स्ट किसकी पिक्चर है? इट्स द पिक्चर ऑफ अ वॉच. वॉच किस लेटर से स्टार्ट होता है? डब्ल्यू. सो लेट्स राइट डब्ल्यू. सो वॉच स्टार्ट्स विद द लेटर डब्ल्यू. सो वी हैव रिटन डब्ल्यू. नाउ द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ एन एप्पल. Apple starts with A. So let's write A over here. Then the third picture is of a ship. You can see a ship. Ship starts with the letter S. So let's write S. Ship starts with letter S. So I've written S. Then there is a picture of a tiger. Tiger starts with letter T. So the next letter is T. Then the last letter, picture of eye, है ना. आँख की पिक्चर बनी और आँख को इंग्लिश में आई बोलते हैं. और आई किससे स्टार्ट होती है? ई से, विद द लेटर ई. सो ई फॉर आई. नाउ लेट्स अगेन सी कि हमने डब्ल्यू कहाँ से आया. डब्ल्यू वी हैव टेकन
फ्रॉम दी पिक्चर वॉच. वॉच का फर्स्ट लेटर W होता है, so I've written W. Second picture is of an apple. I've written A because apple starts with the letter A. Third picture is of ship. So I've written S because ship starts with S. The spelling of ship starts with S. Then the fourth picture is of a tiger. So I've taken T. Tigers, T. I've written. And the last picture is of an eye. आँख की पिक्चर है, आई का हमने ई लिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. फोर लेटर वर्ड होगा ये, बिकॉज 4 पिक्चर्स हैं. ये 5 लेटर वर्ड्स थे, ये 4 लेटर वर्ड होगा. ओके, अब फर्स्ट पिक्चर किसकी है? याक की, है ना. याक माउंटेन्स में होता है, स्पेशली जहां बहुत स्नोफॉल होती है वहां पे याक्स होते हैं. सो याक का हम फर्स्ट लेटर कौन सा लेंगे? वाई. ओके, द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ एन ऑरेंज. ऑरेंज किससे स्टार्ट होता है? विद द लेटर ओ. सो आई हैव रिटन ओ. देन द थर्ड पिक्चर इज ऑफ एन अम्ब्रेला. You all use umbrella when it rains. So umbrella starts with the letter U. So I've written U. Now the fourth picture is of a rabbit. He's so sweet, isn't it? Rabbit. And rabbit starts with letter R. तो हमारा थर्ड वर्ड क्या हमने डिकोड किया? Your. अभी तक हमने 3 वर्ड्स डिकोड किए. फर्स्ट क्या है? Never. Second, waste. And third, your. Now again हमें अभी 4 वर्ड्स टोटल बनाने हैं. 3 हमने डिकोड किए और जो फोर्थ वाला वर्ड है वो भी 4 लेटर वर्ड है. लेट्स सी विच इज दैट वर्ड. ओके, अब चलो देखते हैं. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ट्री. तो हम ट्री का क्या लेंगे? टी. वी विल टेक टी बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्री इज टी. ट्री, द स्पेलिंग ऑफ ट्री स्टार्ट्स विथ टी. तो हमने टी लिखा. ओके, नाउ द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ एन इग्लू. आपको पता है ना इग्लू? बहुत जहां पे आइस होती है, बहुत स्नो होती है, एस्किमोज रहते हैं. और एस्किमोज जिस घर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इग्लू. आपने ईवीएस में पढ़ा होगा. फाइन. सो इग्लू किससे स्टार्ट होता है? आई से. या नाउ इग्लू स्टार्ट्स विथ लेटर आई. सो हमने इग्लू का आई लिया. नाउ द थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ monkey. Such a cute monkey, isn't it? Monkey किससे स्टार्ट होता है? M से. So I've written M for monkey. And the last picture is of an engine. एक engine की पिक्चर है. engine किससे स्टार्ट होता है? E से. So हमारा जो फोर्थ वर्ड बना है वो क्या हो गया है? टाइम. T कहाँ से आया? From the word tree. First letter of tree. I from the word igloo, first letter of the word igloo. M from the first letter of the picture monkey. And E from the first letter of the word engine. तो fourth word क्या हो गया? time. First word never, second word waste, third word your and fourth word time. तो अब हम इसको पूरा मिला के पढ़े तो क्या सेंटेंस आ रहा है? Let's read. Never waste your time. Such an important sentence, isn't it? हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, है ना? अभी कर लेंगे and we keep on delaying things. And you all are aware that time waits for nobody. So very important sentence which we need to implement in our lives, isn't it? And that is never waste your time. हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो यू हैव सीन हमने कैसे इन पिक्चर्स की हेल्प से हमने कैसे एक सेंटेंस को पूरा डिकोड किया. एक एक वर्ड को हम पहले फ्रेम करते गए विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर. एंड आई होप आप सब लोग डिकोड कर लेंगे. अगर कोई पिक्चर्स बनी हुई आई है ना, आपको कुछ नहीं करना है, पिक्चर को देखना है और यू नीड टू नेम द पिक्चर एंड यू नीड टू टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर. हमने ऐसे ही किया और हमारा सेंटेंस क्या बन गया?
never waste your time. I'm sure you all must be utilizing your time wisely. अगर आप waste कर रहे हो तो stop wasting your time and utilize your time. And with this, students, we have finished our unit 6, that is verbs is MR. I hope अभी सबको समझ में आ गया है कि प्रेजेंट टेंस में जो हम नाउ वर्ड्स यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो कौन कौन से हैं. इज, एम, आर. इज हम कब यूज करेंगे बेटा? व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, दिस, दैट. आर कब यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, यू हो, वी हो, दे हो, दीज हो, दोज हो. और एम कब यूज करेंगे? एम प्रेजेंट टेंस में सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है. आई होप अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से कोई भी एक्सरसाइज इज एम आर की सॉल्व कर सकते हैं. बट कीप इन माइंड दीज आर नाउ वर्ड्स, दैट मीन्स दे ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. So that's all for today, students. Please do learn and revise all the taught exercises of unit 1 to 6. Thank you, students. Good day ahead.